students. Today's topic is valence bond theory. This topic is a part of your chapter chemical bonding. Okay, इसके दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है. Okay, and the third part is valence bond theory. So what is valence bond theory? So before starting, I would really like to discuss about the previous topics we have already discussed, because there's a link between the previous topic and this topic. So we had, in the previous lecture, we had learned about the types of chemical bonding, ionic bond, Fazan rule, okay, Lewis dot structure, okay, and we learned how to draw the structures, okay. But that failed, Lewis dot structure had failed. That's why there was introduction of this theory, which is the valence bond theory. यानी कि atomic orbitals जो है वो कैसे एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं. क्यों ओवरलैप हो जाते हैं? Why do they overlap? So that is what we are going to study over here in this topic. So basically here I have mentioned also कि valence bond theory or VBT is nothing but overlapping of atomic orbitals, and this happens only in covalent orbitals, okay. So students, here you can see there's one structure given over here. There are two hydrogen molecules or orbitals of a hydrogen which combine to form a molecule of hydrogen, right? H2. Okay, this is H, and which gives us H2, right? So what does VBT speaks about, or what are we going to study? It basically speaks about the combination of these orbitals, also the shape of the molecule, bond energy and bond length. So if I give you all a mnemonic, how to remember this valence bond theory, the mnemonic is big boss. The mnemonic is big boss, big boss, big boss. You all watch, So why do we study VBT? We study VBT especially only, it happens only in covalent bond, and we get to know about the molecules. First of all, the mixture, there is an overlapping of atomic orbitals, okay. So we are going to study here about bond energy, big boss, B stands for bond energy, B stands for bond length, O stands for orbitals overlapping, and S stands for shape of molecule. So VBT also tells us about the bond energy, bond length and shape of the molecule. Okay, so now let us go one by one about the postulates. So let us learn about the postulates. Okay, so the important postulates of VBT are, the first point is covalent bond. This I have mentioned before also. Covalent bond is formed by overlapping of what? Atomic orbitals. Okay, obviously है ना, शेयरिंग होती है तो ओवरलैपिंग भी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. Okay, two or more atomic orbitals, they overlap, like in this case H and Cl. Okay, they combine together to form what? What is this? This is nothing but HCl. One, and here I will let important point to notice, ये दोनों opposite spin के होने चाहिए. जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी वो कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑपोजिट स्पिन वाले ही कंबाइन कर सकते हैं. वेरी वेरी important. Then what next you have to know is about the types of orbitals. Okay, orbitals अलग अलग टाइप के होते हैं. Okay, only half-filled orbitals also can overlap. Okay, can they overlap or no? Can't they overlap, or yes or no? What do you all think? half-filled orbitals, अगर s orbital है और p orbital है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि S और P के बीच में हो रहा है ना. दे कैन नॉट बी अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम. ओके, बट सेकेंड थिंग, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए. स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स लाइक ओवर हियर. ओके,
स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, दिस इज़ करेक्ट। देखो यहाँ पे सेम स्पिन है तो ये नहीं होंगे, ये बॉन्ड नहीं बनेगा 2p और 1s, क्योंकि स्पिनिंग सेम है ना। ये देखो स्पिनिंग एरो एक ही तरफ है, उल्टे एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। और नेक्स्ट वाले में भी देखिए, यहाँ पे देखो हाफ फील्ड है ही नहीं, यानी कि हाफ फील्ड होना तो पहला क्राइटेरिया है ही है, दे शुड भी। अगर यहाँ पे देखो है हाफ फील्ड है ही नहीं, ये हाफ फील्ड है, तो कैसे बॉन्ड बन सकता है, इसलिए नो कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे भी मैंने 3 केसेस बताए थे, वहाँ पे भी बॉन्ड नहीं बन सकता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द फोर्थ पोस्टुलेट। ओके, identity of orbitals. What do you mean by this identity of orbital? Orbitals retain their identity after overlapping. यानी कि ओवरलैपिंग करने के बाद भी, जैसे यहाँ पे ये स्पेरिकल है, ये डम्बल शेप का है, राइट। आई होप यू ऑल नो द डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, यू नो ना, SPDF. I have taught it in previous chapters. Okay, S orbital is sphere shape, spherical, whereas P orbitals are dumbbell. Okay, T orbitals are double dumbbell and F orbitals are discrete shape. Okay, now here as I told you, this is an 1s and this is a dumbbell shape, a P orbital. तो ये दोनों जब इनका ओवरलैपिंग होता है, तो यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, तो ये शेप बिगड़ा नहीं है, ये अपना स्पेरिकल ही है, डम्बल ही है, राइट। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वन मोर चीज़, इनफैक्ट ये नोट भी कर लो आप लोग कि यहाँ पे देखो ये एनर्जी हाई थी और यहाँ पे एनर्जी इसकी लोअर हो जाती, कंबाइन या ओवरलैप होने के बाद एनर्जी लोअर। और इनफैक्ट मैंने कहा कि लास्ट लेक्चर्स में भी कहा है कि हमेशा स्टेबिलिटी तब मिलती है जब एनर्जी लो हो जाती है, तो हाई से लो होना ही उसको स्टेबिलिटी पाना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ओवर हियर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा, मतलब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हैं, 1 है तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन NH3 में, यहाँ पे देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, देखो एक इसका ये अनपेयर्ड था, नाइट्रोजन का ये अनपेयर्ड, तो ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन आके जुड़ेगा उससे पेयर होने के लिए, इसीलिए 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ ओवरलैपिंग। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ओवरलैपिंग? बेटा दिस सेकेंड पेज, ओके, दिस इट शुड बी ओवरलैपिंग शुड टेक्स प्लेस एट ऑप्टिमम पोजीशन। यानी कि ओवरलैपिंग एक थोड़ा सा एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और जितना डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे इस केस में मिनिमम रिपल्शन है, इसीलिए सही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए एकदम ही न्यूक्लियस को एकदम टेक के नहीं होना चाहिए, एकदम करीब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम रिपल्शन। ओके, तो ओवरलैपिंग मस्ट बी एटलीस्ट लेस देन 50%, एकदम ही न्यूक्लियस के अंदर नहीं, लेस देन 50, मतलब एक ओवरलैप होना। जैसे तुम्हारे फ्रेंड हाथ मिला रहा, ठीक है, एकदम ही घुस जाएगा तो आप अनकम्फर्ट हो जाओगे ना, तो वही केस है। ओके, इट ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओके, जो भी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जितना ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। जितना ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और उतना ही बॉन्ड एनर्जी होगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ जितना ओवरलैपिंग होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, कैसे ना, लॉजिक है कि नहीं इसमें? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वन इज़ द सिग्मा एंड वन इज़ द पाई। तो ये जो हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ते हैं ना, ये ओवरलैपिंग की वजह से, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। तो ये सिग्मा वाला जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, या हेड ऑन। एक्सियल मतलब ऐसे जो गोला गोला, हेड ऑन, ठीक है। और पैरेलल होना यानी कि ऐसे होना, एक्सियल होना यानी कि ऐसे होना, पैरेलल होना यानी कि ऐसे। जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और ये इसको हम लैटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाती है और पैरेलल ओवरलैपिंग
पाई बॉन्ड बनाती है। ओके, यहाँ पे याद रखना है आप लोग को, एस जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ओके, याद रखना है इस चीज़। इसको हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि किस किस में एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, HF, HCl, HBr, HI, इस टाइप के बॉन्ड में जो नॉन डायरेक्शनल होता है या स्पेरिकली सिमेट्रिकल ये बॉन्ड होते हैं। देखो ये जो स्पेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं कि नहीं एस ऑर्बिटल्स, गोल हर तरफ से सेम, तो ये कैसे मिक्स होंगे? मिक्स तो ऐसे ही होंगे। ओके ओके, और एक चीज़ याद रखना है आप लोग को, जो ओवरलैपिंग होता है वो सेम साइन का होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव की नहीं। ओके, ये भी कंडीशन है। जैसे यहाँ पे पी एक्स है, इसका पॉजिटिव साइड ही ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, ये आप लोग को याद रखना है। जो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, इसके 3 टाइप के होते हैं, SS, SP और PP। एस ऑर्बिटल, देखो ऑब्वियसली ना, एक एस और एक एस का मिलन हो सकता है, लो मिल गए और क्या बना, SS, क्या SS बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड ही। और ये ओके, एस के नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड ना, याद रखना। अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे एग्जांपल दे दो SS बॉन्ड का, H2 है, H एक 1s1 है, 1s1 है, बस दोनों मिलके क्या बने, H2 बना। HH वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, राइट। SP ओवरलैपिंग क्या है, एक एस और एक पाई बॉन्ड। देखो जो P वाला होता है वो PX, PY और PZ होता है, राइट। याद रखना, ये तो आप लोग को पता है ना। एक PX होता है, देखो यहाँ पे जनरली टेक्स्ट बुक PZ को ऐसे लेते हैं, PY को ऐसे लेते हैं और PX को भी ऐसे क्रॉस वाला लेते हैं। तो ये 3 डायमेंशन के होते हैं ना ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स है क्या, ऑर्बिटल ऐसा कोई शेप नहीं होता है उसका, एक है ना, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एस और पी की ओवरलैपिंग ये वाले के साथ हो जाती है, जो मतलब जो इस तरीके से लीनियर है उस टाइप के पी ऑर्बिटल से हो जाती है। देखो ओवरलैपिंग हुआ, एस और पी का बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। बना कि नहीं बना, गुड, बना। तो इसी तरह एस और पी की ओवरलैपिंग भी होती है, वही एस और पी ओवरलैपिंग होती है, जैसे एस और एस की ओवरलैपिंग होती है। उसके एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, एच और एफ। यहाँ पे देखिए एच का कैसे करना है आपको, वीबीटी में है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s1 है, 1s1 है तो एक ही एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में। एफ के ऑर्बिटल्स बनाओ, 1s2, 2s2, 2p5। तो बेसिकली वैलेंस ऑर्बिटल से हमें लेना देना है, तो 2p5 है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 9 हुआ ना, F9 होता है ना, फ्लोरीन 9 होता है ना, करेक्ट। तो अब करना क्या है आप लोग को, इसका एक अनपेड है, इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिन भी है तो बॉन्डिंग होगी, बस एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसा ना 1s और 2pz में मैंने कहा ना, अक्सर जो टेक्स्ट बुक्स देखो कभी कभी 2px को लेटा हुआ देते हैं, कभी कभी 2pz को, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोग दोनों ले सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एच और एफ का बॉन्ड बन रहा है और 1s और 2pz के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, 1s और 2pz, ये जगह खाली है, इन दोनों का मिलाप हो रहा है, इन दोनों का ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको हम कहेंगे एस और पी ओवरलैपिंग। उसी तरह पी और पी ओवरलैपिंग होते हैं, 2 पी वाले, लेटे लेटे वाले या स्टैंडिंग वाले, बस ये कंडीशन होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए उसमें, ये ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के, और पॉजिटिव साइड सेम होना चाहिए। तो पी पाई या पी पी सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। इसके एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है BF3। BF3 से बहुत क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट ये फेवरेट है एग्जामिनर्स का, ये वाला कंपाउंड। तो BF3 में बेसिकली अगर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोरॉन 5 है, 1s2 2s2 2p1, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 है। तो अगेन F के 3 वाले हैं तो 3 बार बनाओ, स्पेशली आखिरी वाला बनाओ क्योंकि वही हाफ फील्ड है। एक तरफ हाफ फील्ड इसका, एक ये एम्प्टी रखो, एक बार में ये वाला, एक बार में ये वाला एम्प्टी रखो, एक बार में, अच्छा ये रख चुके हैं, ये वाला एम्प्टी रखो, चलो यहाँ पे ये वाला एम्प्टी रखो, यानी कि इस तरह एम्प्टी रखो। मैं बता रही हूँ क्यों, एक एक अलग अलग एम्प्टी क्यों रखो। देखो बोरॉन है, अब देखिए यहाँ पे 2 ही जगह है लेकिन 3 फ्लोरीन को एकोमोडेट करना है हाफ फील्ड को, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड कर देते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज से ये इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर आ गया,
तो ये 3 जगह खाली हुई तो 3 फ्लोरीन आके उससे जुड़ जाएगा, इसी तरह उसके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ओके, इसी तरह आप लोग को करना है VBT में। इसी तरह आप लोग H2O का भी बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड में दूंगी होमवर्क के लिए। H2O का देखो कैसे बनाओगे, H2O का कैसे बनाओगे। H2O का तो आप लोग को फॉर्मूला पता है ना, अब स्ट्रक्चर भी पता है, O बीच में और H, O हमेशा सेंट्रल एटम होता है, लुईस डॉट पढ़ा था अभी। ओके, और यहाँ पे अगेन आप O का बना दो। O का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, ऑक्सीजन 8 है, -2 2s2 2p4, उसको बना लीजिए। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन ना, तो दोनों का 1s तो एक हाफ फील्ड ये भी है, तो ये इधर आके जुड़ेगा, समझिए, एक यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। उसका फिर आप लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये XYZ है ना, ओरिएंटेशन अगर मैं लूँ XYZ, तो समझो कि Z अगर लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है, चलो Z खड़ा हुआ है, यहाँ पे Y लेटा हुआ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक और नहीं है, कौन सा, X को लिया ही नहीं हम लोग ने, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो किस में नहीं गया है, वो ओवरलैपिंग में नहीं उसकी ज़रूरत है। तो ये जो है यहाँ पे जो है S जो है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों का S ऑर्बिटल आके हाफ फील्ड अपना लेके दोनों का क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से बनाऊँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइड वाइज होता है ऐसे, इस तरह देखो ऐसे, साइड वाइज अगेन ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, लो ओवरलैप हो गया, PP। हाँ, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है O2 का, एक हो दूसरा हो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और आखिरी वाले क्योंकि 2p6 है ना यहाँ पे, -2p6, तो 2p6 1 2, तो यहाँ पे 4 बचेगा ना आखिरी में, 2p4, तो यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, बस एक दूसरे के अंदर ये ओवरलैप हो जाते हैं। ओके, एक दूसरे के अंदर ये ओवरलैप, देखो स्पिन भी ऑपोजिट है, राइट, ऐसे याद रखना, स्पिन ऑपोजिट दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट उसी का डायग्राम भी बनाया है, कुछ नहीं, एक PY बना दो, एक PZ बना दो, क्योंकि 2 ही के ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो क्योंकि PZ देखो PY खड़ा खड़ा लिया है हम लोग ने, खड़े खड़े वाले का कैसे होगा ओवरलैपिंग, इतने दूर है तो ऑब्वियसली ना थोड़ा सा टेढ़ा होके होगा, बस ये टेढ़ा होके, इसको अभी टेढ़ा दिखाएंगे कैसे, तो इसलिए टेक्स्ट बुक में या हम लोग को जनरली ऐसे बताना चाहिए कि ये दोनों का ये पाई बॉन्ड बनता है, जो ये टेढ़ा वाला है, जो स्ट्रेट वाला है, वो क्या बनता है, क्या बनाता है, पाई बॉन्ड, और जो इस तरीके से ओवरलैप होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। N2 का देखिए, N2 मतलब एक N दूसरा N, दोनों को आपको ओवरलैप करना ऑर्बिटल्स को, तो दोनों के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके ऑपोजिट स्पिन दिखाना ज़रूर। हाँ, ये PX PY और PZ है। ओके, ये PX PY PZ। अब यहाँ पे देखिए ये सब अब दोनों ऑपोजिट्स पे एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे ऑर्बिटल्स को, क्योंकि अब यहाँ पे देखो PX PY PZ है, तो मैंने तीनों ओरिएंटेशन बताए। ओके, मैंने समझो अगर इसको PY लिया है, ये PX लिया है, या PZ ले लो, या इसको PX ले लो, जो भी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्डिंग होगी, और ये दोनों के बीच में सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ये तो हो गया, लेकिन ये भी तो है एक बुक के उस तरफ, मतलब अंदर की तरफ इमेजिन करो, एक सामने की तरफ देखो, ये वाला, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये भी तो पाई बॉन्ड हुआ, 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखना। तो इसी तरह ये बता रहे हैं, एक सिग्मा और ये दोनों पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड और ये वाला भी, ये दोनों भी अटैच्ड हो गए, ये पाई है, और ये जो पीछे की तरफ से एक दूसरे से मिल रहे हैं PX वो भी पाई बॉन्ड है, PY में भी पाई बॉन्ड है, और PZ में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू draw the structures, and then I am giving you homework. Homework is find the number of sigma and pi bond. क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड pi bond। ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वापस से दे रही हूँ मैं। एक्चुअली नोट्स भी आप लोग को फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, लेकिन ये होमवर्क है और मैं एक आध करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। one or two sums, okay, I will do and show।